PCOD and PCOS, polycystic ovary disease, polycystic ovary syndrome, one of the most common problem today Indians are facing. Not just that, you talk to any girl out there, they will be having either these two problem or monthly cycle related problem. As a male, why I have decided to take this topic in today's video, reason being lot of us are not aware what exactly this problem is, and what I feel it is a kind of taboo to talk regarding this thing. It's very crucial to know this aspect of a life because this is not something we should not discuss. ये हमको पता होना चाहिए, we each and every one of us, even male and female, उनको पता होना चाहिए what exactly the problem is, why this is happening and what is the solution. ये जब हमको पता रहेगा, we will be able to properly guide our family members, we will be able to teach them exactly इसका solution क्या रहेगा. And everyone, I am pretty much sure कि सबके family में कोई ना कोई ladies वहाँ पे रहेंगी. It can be your mother, it can be your wife, your girlfriend, your sister, it can be anyone. So as a male, it is our responsibility to know this thing, what exactly this is all about and why this problem is rising so much and why today's generation they are facing this problem. Let me explain you this topic in very simple and easy words. I won't be using very high fundo scientific words. Let me keep it simple ताकि आप लोगों को easily समझ में आए and you will be able to share this information with your friends and family members. Okay, so polycystic ovary disease और polycystic ovary syndrome, ये जो problem है, this is happening because of the hormonal changes in a woman body. जैसे आप सबको पता रहेगा, मेल बॉडी टाइप इज डिफरेंट एंड द फीमेल बॉडी टाइप इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हॉर्मोन्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ दिस बॉडी टाइप. यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है देन देयर इज ए सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज द पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और आगे जाके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को भी वहां पे कन्वर्ट वहां पे होता है. सो ये सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस इन ए फीमेल बॉडी. जैसे कि आप बोल सकते हैं मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और फीमेल हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, कॉजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. और इसको यदि कंट्रोल ठीक से नहीं किया गया, इसको यदि फिक्स नहीं किया गया प्रॉपर टाइम पे, इट कैन कॉज ए प्रॉब्लम ऑफ कंसीविंग और बाकी भी इश्यूज वहां पे आ सकते हैं. will be affecting the reproductive organs, causing the changes in the levels of estrogen and progesterone, जो hormonal imbalance जिसको कहा जाता है. Now आप सबको पता रहेगा our body is controlled by different kind of glands. The glands जैसे कि pituitary gland, thyroid gland, pineal gland, these are different glands जो अलग अलग टाइप के hormones create करते हैं. Like FSH, follicle stimulating hormone, there is luteinizing hormone. So these are multiple hormones जो हमारे body के multiple functionality को चलाने में help करते हैं. ओके, सो नाउ जो प्रॉब्लम रहता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जहाँ पे जो ओवरीज में जब एक्स्ट्रा सिस्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट इन ओवरीज. Because of this problem, a woman body suffers with lot of different kind of issues. Like there is gain in the fat percentage, they start facing the thyroid issues as well as facial hair, irregular menstrual cycle. There are multiple issues they start facing. Lack of concentration, mood swings वहाँ पे होना, चिड़चिड़ापन, these are the problems. And सबसे major concern कहाँ पे आता है, they are not able to share this aspect with anyone in their family because family में कोई समझने वाला वहाँ पे होता ही नहीं है. So that is my purpose कि to teach you guys कि exactly this problem is very common nowadays. And why it is very common? आजकल के situation में ये इतना ज़्यादा क्यों PCOD, PCOS, why it is rising in such a higher rate? This is because in the drastic change in the lifestyle since last 5-10 years. And lifestyle I mean is the way the person is living. We are staying in this metro cities जहाँ पर eating habits are not proper. We are having sedentary lifestyle. We are eating lot of packed food, processed food, lack of nutrition, no physical activity, no proper sleeping ways, not having enough of water. So many problems they combine and cause all these issues. From all the reasons which I've just mentioned you, one of the major reason is insulin resistance. And you need to understand what the insulin resistance is all about. Whenever we are eating any kind of food, be it rice, chapati, सब्जी, कुछ भी खाइए, उसमें से ग्लूकोज जनरेट होता है.
ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ओके ना, उसको फूड से हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम रहता है इंसुलिन का, विच इज हार्मोन जनरेटेड बाय पैनक्रियाज। नाउ पैनक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन जब क्रिएट करता है सो दैट द ऑल द ग्लूकोज गोज टू आवर बॉडी सेल्स, बट फॉर सम और अदर रीजन बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज द इंसुलिन इन गुड वे। तो वहां पे क्या होता है कि पैनक्रियाज दे स्टार्ट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन, एंड बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इंसुलिन ओवरीज वहां पे एस्ट्रोजन विच इज मेल हार्मोन, उसका प्रोडक्शन वहां पे रेट बढ़ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस देयर इज राइज ऑफ इंसुलिन, देयर इज राइज ऑफ मेल हार्मोन्स कॉजिंग ऑल द इश्यूज इन आवर बॉडी। वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। सो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस इश्यूज एंड द चेंज इन लाइफस्टाइल वी आर फेसिंग दिस पीसीओडी पीसीओएस इशू। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए वी नीड टू फोकस ऑन इम्प्रोवाइजिंग आवर लाइफस्टाइल, आवर ईटिंग हैबिट्स एज वेल। तो हमको फोकस किस पे करना चाहिए? लो जीआई बेस्ड फूड, यानी जीआई इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फूड। तो हमको फोकस करना चाहिए लो जीआई बेस्ड फूड, यानी ऐसे खाना जिसमें से शुगर या फिर ग्लूकोज कम से कम वहां पे प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे सबसे पहला होना चाहिए कि एनी काइंड ऑफ स्वीट्स आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। समटाइम इज ओके, मतलब हफ्ते में आप 1-2 बार खाते हैं, इज कंप्लीटली ओके, बट नॉट इन डेली बेसिस। नॉट जस्ट द स्वीट्स, इवन द फूड विच आर रिच इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे राइस या आप आलू खाते हैं या स्वीट्स खाते हैं, समोसे खाते हैं, दीज काइंड ऑफ फूड आर वेरी हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉजिंग ऑल द इश्यूज। सो फोकस आपको करना है न्यूट्रिशन रिच, फाइबर रिच या फिर लो जीआई बेस्ड फूड विच इज वेरी बेनिफिशियल। तो उस टाइप के फूड आइटम आप वहां पे खाना स्टार्ट करिए। सेकेंड इज एड मोर ऑफ न्यूट्रिशन या हाई क्वालिटी विटामिन मिनरल्स, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर ए प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस इन आवर बॉडी। आप यदि प्रॉपर विटामिन मिनरल्स जैसे कि B12, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, यदि ये मिनरल्स आप कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस में, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई वुड सजेस्ट यू टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू देन गो फॉर सम मल्टीविटामिन फ्रॉम ए गुड क्वालिटी कंपनी, आप उसको आराम से वहां पे कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज स्टार्ट हैविंग ए गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। आप जितना ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखेंगे, स्टॉप सिटिंग एट द वन प्लेस लंबे ड्यूरेशन तक, बी मोर एक्टिव, स्टार्ट डूइंग सम और अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो वहां पे कंज्यूम होना स्टार्ट होगा, एंड द बॉडी विल बी एबल टू यूटिलाइज द इंसुलिन, द ग्लूकोज इन ए प्रॉपर वे, जिससे बॉडी में बैलेंस वापस से आना वहां पे स्टार्ट होता है। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट विच आई विल टेल यू इज वेरी क्रूशियल, हैव ए गुड प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न। लेट नाइट आपके मूवीज, लेट नाइट तक काम करना, ये जो बैड ईटिंग हैबिट्स होते हैं, बैड लाइफस्टाइल होता है, बिकॉज ऑफ द एवरीथिंग इज स्क्रूड अप एंड बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो हमको फोकस किस पे करना है कि प्रॉपर टाइम पे हम सो भी रहें। इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप, यदि हम लोग लंबे ड्यूरेशन तक काम करते हैं सिटिंग एट वन प्लेस, देन बॉडी इज टायर्ड अप एंड वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रेस्ट। तो इट्स वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू गिव प्रॉपर रेस्ट, so that सुबह उठने के बाद you are able to do all of your activities, you can have little bit of good quality nutrition based food and then आप अपने lifestyle को वहाँ पे correct कर सकते हैं। One more thing which I'd like to tell is whenever you are going to the doctor for this situation, always remember कि वो जो भी मेडिसिन देते हैं that is for the symptoms जो आपको मिल रहे हैं। एग्जाम्पल का PCOD, PCOS के टाइम में there is irregular monthly cycles and they are cysts in our body, तो वहाँ पे they are trying to fix those symptoms with the medication, so they are not fixing the root cause। यदि आप जब तक रूट कॉज को फिक्स नहीं करेंगे, आपके साथ ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग के लिए चला रहेगा। इसीलिए डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि यू नीड टू टेक मेडिकेशन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। ये कभी भी आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड the root cause is not the symptoms. Root cause if you are fixing, then you will be able to solve this problem हमेशा के लिए and you won't be taking medication for a longer duration. So focus on finding the root cause, and the root cause, as I mentioned, they are the lifestyle correction which you need to do. Start having good quality protein based food, start having vitamin minerals, be more active, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है। वुमेन स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाया था, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो फॉर द ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन जरूर आप अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को आप शेयर करिए। इसमें कोई भी डाउट और क्वेश्चंस होते हैं, फील फ्री टू लेट मी नो।
बिकॉज आप वहाँ पे कमेंट करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे, तब भी मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर पाऊंगा। और किस टाइप के वीडियोस आपको पसंद है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। हमारा इंस्टाग्राम, ब्लॉग, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में दिया हुआ है, एज वेल एज वी हैव स्टार्टेड विथ आवर पॉडकास्ट ऑल्सो। आप उसको भी जाके आराम से वहाँ पे सुन सकते हैं। Thank you so much guys, have a great day, take care, see you next time with one more amazing topic.